Greetings, students. Welcome back to the chapter The Address. Now थोड़ा हम इसको रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे चिल्ड्रन. Now summary of the address. The address summary will help you to learn easily about the story written by Marga Minko. So who wrote it? किसने लिखा गया है? Marga Minko ने. It gives an account of the chaos which follows war. ठीक है, तो वॉर कब लिखी गई थी? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी. सो इट कंप्लीट गिव्स एन अकाउंट ऑफ इट. वी सी what it does to human and their behavior. तो हमको पता चलता है कि वो बिहेवियर कैसा हो जाता है, किसका? लोगों का. You can feel the pain, grief and mental torture the survivors of the war हैव टू गो थ्रू. तो हम ये देखेंगे कि क्या क्या मेंटल टॉर्चर है जो सर्वाइवर्स के थ्रू या प्रॉब्लम्स जो लोग जाते हैं. इट इज़ अबाउट द ऑथर स्टोरी हु इज़ अ जू. ठीक है, तो दे बिलोंग टू जूइश community children and returns to her native home post war. After suffering many losses, she even loses her mother. तो जो writer है, she loses her mother also. Further, it is about how she handles the world alone after going through so much pain. Moreover, we learn about world's cruelty towards oppressed. Upon suffering the further oppression, she realizes a lesson in a tough way. She comes to realize that nothing is kept in materialistic things and she gives everything up. Thus, it shows up that human pain and self-actualization. Now, let us move, let us see. I've made it in the PDF form. Now, see, she is Marga Minko and she was born in 1981. ठीक है, at Sara Minko in 1920, Netherlands. Okay, pre-name is Marga Minko. Occupation, she was a she was a journalist and a writer and her language was Dutch. Okay, see, you have to see the picture also. Okay, how she looks. Okay, children, and she was suffering from the pain. So that is why do we, I always tell you, why do we actually learn about the author or the writer? We actually come to know that her what mental state she is going through. Now she writes about a war. Maybe she had gone through all this. Okay, children, now let's move forward. Now some idea about this chapter. It's a story about girl whose mother. So there's a writer. Writer's mother is Mrs. S. राइटर की माँ का नाम Mrs. S दिया हुआ है. ठीक है, उन्होंने सारी की सारी गेव देयर बिलोंगिंग्स टू अ लेडी कॉल मिसेस डॉलिंग. तो उन्होंने अपनी जो सारी की सारी बिलोंगिंग्स थी किसको दी थी? मिसेस डॉलिंग्स को अपनी सारी चीज़ें दे दी थी. कब? ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द वॉर मिसेस एस डाइज बट हर डॉटर सर्वाइव्स. तो कौन मर जाता है? मिसेस एस. बट उनकी डॉक्टर बच जाती है. किस में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. Her daughter first thinks to leave the belonging to her mother as she thought it will make her remember the good old times and she will then regret it. But later she becomes curious to see her mother's belonging. पहले उसने बोला छोड़ो मैं नहीं जाती हूँ या अपनी किसको देखने के लिए, बिलोंगिंग्स को देखने के लिए नहीं जाऊँगी. बट लेटर क्या हुआ? उसने बोला कि नहीं, शायद वो क्या है, मेरे लिए बहुत इमोशनल चीज़ें हैं. राइट और वो क्या करती, उनको देखने जाती. बट लेटर शी बिकम्स क्यूरियस टू सी हर मदर बिलोंगिंग. वो देखना चाहती कि मेरी मदर की बिलोंगिंग कैसी है. ठीक है. बट देन मिसेस डॉलिंग एक्ट्स लाइक शी डजंट नो हर एंड avoids Mrs. S's daughter, and the girl tries to get her belonging back. But when she finds them, the object evokes memories of her old life. She decides to leave them all behind and resolve to move. अब क्या होता है चिल्ड्रन?
अब जब वो देखती है, पहले तो याद है जब वो स्टेज में खड़ी होके बोलती कि इज दिस यू नो दिस इज मिसेस डॉर्लिंग, तो वो बोलती हाँ जी आपको क्या करना है। वो अपना इंट्रोडक्शन देखती तो वो अच्छे से अक्वेंटेंस, जो उनकी अक्वेंटेंस होती है मिसेस डॉर्लिंग, वो अच्छे से नहीं रिएक्ट कर पाती, राइट। तो क्या करते हैं चिल्ड्रन, इसमें ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मुश्किल है, राइट। बट लेटर वो सोचती कि मैं सारी की सारी बिलोंगिंग्स अपने कहाँ लेके आ सकती हूँ, अपने सारी की सारी जो बिलोंगिंग्स है मैं अपने घर लेके जाऊंगी। बट जब वो उनको देखती है उनका मन भर जाता है, और उनको ये याद आता है कि इन सब को देखकर उनको किसकी याद आ रही थी, उनकी अपनी मदर को। तो वो क्या डिसाइड करती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि अब मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी। ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट। नाउ चिल्ड्रन दिस इज द वॉर इन हॉलैंड। ठीक है चिल्ड्रन, दिस इज अ वॉर इन हॉलैंड। ठीक है, तो देखो लोग कैसे मरते थे ड्यूरिंग दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कंसंट्रेशन कैंप। एंड इफ वी रेड मैनी स्टोरीज, देयर वर स्मॉल किड्स हु वर पिक्ड अप, and you know they were you know their hair was introduced to lichens, and moreover you know they used only, they couldn't use public transport Jews, and they were in a bad shape। ठीक है, तो उन्होंने सोचा, मिसेस एस ने सोचा कि मैं क्या करती हूँ, अपनी जो सारी की सारी बिलोंगिंग्स है वो किसको दे देती हूँ, मिसेस डॉर्लिंग को देती हूँ। बाद में ये जब हम आ जाएंगे तो हमको ये सारी चीज़ें वापस मिल जाएंगी। Now see, there are two ladies who are talking. Mrs. S, you should give all the precious item to me, as you might be asked to leave any time, as you shall lose everything. So Mrs. Darlings are you sure about this? As you might get in trouble for helping a Jew. तो उस समय एक जू को हेल्प करना भी बहुत बड़ी मुश्किल में, लोग मार देते थे। बट इधर क्या हो रहा था, they were helping the Jew. Mrs. S, it is complete fine by me. After all, a friend is need, a friend indeed. I insist you to store your belongings at my house at Marconi Street, house number 46. Sorry, this should be 46. Thanks, Mrs. Darling, for helping me out. I ask for a bigger favor. Now, after the war, Mrs. S is dead, but her daughter survives. अब कौन मर जाता है, Mrs. S। ठीक है, उनकी डॉटर क्या हो जाती, मर जाती है, राइट। नाउ मिसेस एस डॉटर डिसाइडेड to bring back her mother belonging from Mrs. Darling's. Now this is Darling's house, ठीक है, number 46 Marconi Street. Okay, see, look at the house. Okay, all the belongings of Mrs. S is inside these house. ठीक है, inside this house हर चीज़, प्लेट से लेकर टेबल क्लॉथ से लेकर स्पून, everything is inside this house. Okay. Now, Mrs. Darling acts like she does not know her and avoid Mrs. Daughter, and the girl tries to get her belonging back, but when she finds them, the object evokes memories of her old life. ना क्या होता है, जो मिसेस एस है वो कैसे क्वेंट होती है, वहाँ पर स्टेप में आती है। देखो जब हम घर पे उनका घर देख के नीचे यहाँ पर देखो स्टेप्स है कि नहीं है चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या है, स्टेप्स हैं। तो हम क्या करते हैं, यर सी यर द स्टेप्स। तो मिसेस एस की डॉटर, ठीक है, डॉटर ऑफ मिसेस एस स्टैंड्स हियर एंड शी स्टार्ट्स टॉकिंग टू मिसेस डॉर्लिंग। ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग क्या करती, एक ओपन करती है ये वाला व्हाट डू यू कॉल इट, ये वाला डोर। नाउ उसमें वर्डिंग्स में अगर हम टेक्सचुअल में जाए, उन्होंने चिंक लिखा हुआ है। शी ओपन्स दिस डोर अ लिटिल बिट चिंक, चिंक मतलब हल्का सा ओपनिंग। और फिर वो क्या करती, पूछती रहती हैं। ठीक है, तो फिर कि क्या ये मार्कोनी स्ट्रीट है, कौन सा है। ठीक है, फिर ये बोलती कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। ठीक है, जब वो ये बात बोलती है चिल्ड्रन, तो मिसेस डॉर्लिंग को समझ आता जाता है कि ये सामान वापस लेना है, विच शी डिड नॉट लाइक इट। तो वो बोलती नहीं नहीं यहाँ से चले जाओ। ठीक है, बट मिसेस एस कैसे रिकग्नाइज करती है कि मिसेस डॉर्लिंग ने मिसेस एस की एक्चुअली कार्डिगन होती ना, स्वेटर होती है, वो पहनी हुई रहती, निटेड कार्डिगन। तब मिसेस एस की डॉटर को पता चलता है कि ये वही हाउस है जो मैं ढूंढ रही हूँ। और
वो बहुत सारी चीज़ें बाद में देखती है, बट उनको लेके जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसको उनको क्या लगता है कि मेरी मेमोरीज, मेरी मदर की मेमोरीज मुझे क्या करेंगी, हॉन्ट करेंगी, ठीक है, आई वोंट लाइक इट, ठीक है। तो इसलिए वो सारी चीज़ें बाहर छोड़ जाती हैं। नाउ शी लेफ्ट। पार्ट वन। अब मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है चिल्ड्रन, ताकि तुम्हें इन चीज़ों के बारे में समझ आ जाए। नाउ द पार्ट वन, द फर्स्ट मीटिंग। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इट इज नरेटेड हाउ प्रोटैगनिस्ट, हु इज अ प्रोटैगनिस्ट, सी द वर्ड हियर वी हैव यूज द वर्ड प्रोटैगनिस्ट, who's the protagonist here. The protagonist is a person who's the main character of the story, was given a cold reception when she went to her native place after the war in search of her mother's belonging, ठीक है, after ringing the bell of the house, ठीक है। Now children, the protagonist is given a cold reception, मतलब उसको बहुत अजीब तरीके से रिसीव किया जाता है। कई लोग होते हैं ना, बहुत खुशी से किसी को रिसीव करते हैं, बट चिल्ड्रन यहाँ पर कोई उनको बहुत अच्छी तरह से रिसीव नहीं कर पाते, राइट? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये मिसेस एस की डॉटर है और ये सामान लेने आई है जो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो शी डिड नॉट लाइक इट, ओके। हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, वुमेन ओपन द डोर, ठीक है। तो एक वुमेन ने ओपन करा। अब ये कौन थी? मिसेस डॉर्लिंग। ऑन बीइंग इंट्रोड्यूस द वुमेन केप्ट स्टेरिंग एट हर इन साइलेंस, ठीक है। तो वुमेन कुछ नहीं बोलती और उसको घूरती रहती कि ये है कौन। देयर वॉज नो साइन ऑफ रिकग्निशन ऑन अ फेस। द वुमेन वॉज वेयरिंग अ रेड, हर मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, बताया था ना मैंने। सो देयर वॉज नो साइन ऑफ रिकग्निशन, ठीक है। वो समझ नहीं पा रही थी कि यार ये है कौन। द वुमेन वॉज वेयरिंग हर मदर्स, मिसेस एस की ग्रीन कार्डिगन पहन रही थी, ग्रीन स्वेटर पहन रखी थी जो हैंड निटेड थी। द नरेटर कुड अंडरस्टैंड दैट शी हैड मेड नो मिस्टेक। अब नरेटर को लगता है कि शी हैड मेड नो मिस्टेक। क्यों ऐसे लगता है? क्योंकि पहले वो सोचती कि यार मैं गलत एड्रेस में तो नहीं आ गई हूँ, उनको ऐसे लगता है। बट अब उसको जैसे वो ग्रीन निटेड कार्डिगन देखती तो उनको लगता है कि नहीं यार, मेरी तो सही उसमें आ रखी हूँ, ठीक है, मैं सही जगह आ रखी हूँ। ओके चिल्ड्रन, द नरेटर शी आस्क्ड द वुमेन वेदर शी न्यू हर मदर। वो पूछती कि आप जानते हो मेरी मदर को? किसको पूछती हैं? विमेन पूछती हैं किसको? कि आप मेरी मदर को जानते हो, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड चिल्ड्रन व्हेन शी आस्क्ड सच क्वेश्चन, ठीक है, द वुमेन कुड नॉट डिनाई दिस। अब वो मना तो कर नहीं पाती क्योंकि वो तो पता था कि कौन है, ये विमेन है, राइट। उनको तो पता था कि ये मिसेस हमने जिनसे सामान लिया था, हमने जिनका सामान लिया था ये वही है। बट नीदर शी कुड एक्सेप्ट इट, नीदर शी कुड से नो टू इट, ठीक है। वो नहीं बोल पाई कि नहीं ये गलत है या यही सही है। द नरेटर वॉन्टेड टू लर्न, ठीक है, द नरेटर wanted to learn to the narrator wanted to talk to her about something for some time। तो वो ना उनसे बात करना चाह रही थी, किन से? नरेटर से। बट वो नहीं, बट वुमेन कॉशली क्लोज द डोर। उसने क्या कर दिया? फटाफट से डोर को बंद कर दिया। द नरेटर स्टॉप्ड देयर फॉर सम टाइम एंड देन लेफ्ट द प्लेस। अब वो वहाँ पर बाहर खड़ी हो गई, ठीक है। सो आई टोल्ड यू व्हाट इट वाज अ काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ आई विल शो यू इन पिक्चर। एक विंडो होती, दिस इज़ अ विंडो एंड दीज आर ऑल वॉल। तो यहाँ पर कौन खड़ा? को ऐसे लगा, मिसेस एस को लगा कि यहाँ विंडो से उनको कोई देख रहा है। लेट अस सी द पिक्चर, ठीक है। वेट, आई विल जस्ट शो यू द पिक्चर। सॉरी, या सी, ये जो पिक्चर है, ये देखो, ये पिक्चर है ना विंडो पे। तो वो वहाँ खड़ी होकर देख रही थी, ठीक है। वो खड़ी होकर ये यहाँ पर देख रही थी कि कोई तो रिकग्नाइजेबल लोग, शायद वो पर्दे भी सेम थे। तो वो बोलती है यार कोई तो रिकग्नाइजेबल हो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो शी मूव्स ऑन। रिमेंबर द पास्ट, पार्ट 2, शी एक्चुअली रिमेंबर्स द पास्ट, okay। In the subsequent section, the memories of narrators bygone days come to light। अब वो वापस जाती है, स्ट्रीट में चलती जाती है और वो अपनी क्या सोचती रहती कि हाँ कभी मैं इन स्ट्रीट्स में पली बड़ी थी,
ठीक है, तो क्या करती है द नरेटर, बाईगॉन डेज कम टू लाइट, वो ना इन चीज़ों को सोच रही है. her mother had provided the address years ago during the war. अब उनकी मदर ने क्या करा था, इस एड्रेस को क्या करा था, प्रोवाइड किया था. ठीक है. शी वेंट टू होम फॉर फ्यू डेज. शी कुड नॉट फाइंड दैट वेरियस थिंग्स वर मिसिंग. तो वो देखती कि वो छुट्टियों में अपने घर जाती है तो देखती कि बहुत सारी सामान तो गायब है. ऐसा लगता है कि कई बार हमें सामान वहीं पर हो तो हमें लगता है कि हाँ ये सामान यहीं पर है, बट वहाँ पर क्या हुआ, वो सामान तो मिसिंग था. एट दैट टाइम her mother told her about Mrs. Darling. अब किसने बताया, उसकी मदर ने बताया कि एक वुमन है जिसका नाम क्या है, मिसेस डॉलिंग है. ठीक है. शी हैपन टू बी एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ नरेटर्स मदर. अक्वेंटेंस जिसे हम ज़्यादा जानते नहीं हो, बस हाँ सोशली हम उनको बहुत अच्छे से जानते हो. ठीक है. तो फिर वो बोलता है कि नहीं मेरी एक फ्रेंड है, उनसे मिलाया. शी हैपन टू बी एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर. Lately, she had renewed contact with her and had been coming there regularly. अभी recently वो उनको मिली और उनके घर आती जाती रही बहुत ज़्यादा. ठीक है. तो कौन आती जाती रही, मिसेस डॉलिंग. शी टोल्ड दैट शी वांटेड टू सेव ऑल देयर नाइस पोजेशन. उसने बोला कि नहीं ये तो इतनी सुंदर पोजेशंस है. ठीक है. तो वो क्या कर रही थी, वो इन पोजेशंस को सेव करना चाहती थी, उनको अच्छे से रखना चाहती थी. द नेक्स्ट डे द नरेटर सॉ मिसेस डॉलिंग गोइंग आउट ऑफ देयर हाउस विद अ हैवी सूटकेस. ठीक है. तो नेक्स्ट दिन वो क्या देखती, मिसेस डॉलिंग आती है और बहुत बड़ा सूटकेस देखकर देखती रहती. शी हैड अ फ्लीटिंग ग्लिम्स ऑफ मिसेस डॉलिंग्स फेस. फ्लीटिंग बहुत लाइट बहुत हल्के में उन्होंने देखा, एक झटक के बोलते ना उनको देखा. शी आस्क्ड हर मदर वेदर द वुमेन लिव्ड फार अवे. तो उसने बोला कि क्या ये बहुत दूर रहती हैं क्या. ठीक है. एट दैट टाइम द नरेटर मदर टोल्ड अबाउट द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. उस समय जब वो पूछती कि ये बहुत दूर रहती हैं तो फिर वो बोलती कि नहीं ये बहुत दूर नहीं रहती. फिर उनको एड्रेस बताती है. आफ्टर मैनी डेज द वॉर गेट्स ओवर. ठीक है. द नरेटर वॉज क्यूरियस टू टेक द रिकॉर्ड ऑफ द पोजेशंस. अब रिकॉर्ड मतलब वो वहाँ पर देखना चाहती थी कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर. विद दिस इंटेंशन शी वेंट टू द गिवन एड्रेस. नाउ अब कहाँ जाती वो, एड्रेस के पास. नाउ द सेकेंड विजिट होता. अब यहाँ पर क्या होता है चिल्ड्रन की जो वो होती है जो पहली बार गई थी तो उन्होंने अच्छे से तो करा नहीं था. ठीक है. अब वो इस बार क्या करती हैं, मिसेस डॉलिंग की बेटी को मिलती हैं. पहले वो मिसेस डॉलिंग से मिलती थी बट मिसेस डॉलिंग ने तो बहुत अच्छे से उनको क्या करा, मिले नहीं. अब क्या हुआ है, वो अच्छे से किसको मिलेंगी, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को. तो मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर ही है, उसमें कोई स्पेसिफिकेशन ऑफ नेम नहीं दे रखा है. The concluding part of the story describes the concluding part of the story describes the second visit of the narrator. ठीक है. अब कौन डिसाइड, ये सेकेंड पार्ट क्या बताता है हमें कि विजिटर का सेकेंड विजिट बताता है. ठीक है. वो उस घर में फिर से आती हैं. ठीक है. और एड्रेस क्या होता है, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46. ओके. As the narrator first visited yielded no result, so she planned to go once again. जैसे वो पहली बार आई थी तो उसको गेट से ही भगा दिया था कि चलो नहीं, हम नहीं विजिट करेंगे, वी डू नॉट नो यू. ना वो एक्सेप्ट करती कि हम तुम्हें नहीं जानते, ना वो क्या करती, मना करती है कि हम तुम्हें नहीं जानते. ना वो हाँ बोलती, ना वो मना करती है. तो वो पहली बार उनको हल्का सा खोलती है और बंद कर देती. इंटरेस्टिंग, अ गर्ल ऑफ 15 ओपन द डोर टू हर. ठीक है. अब कौन खोलता है, एक 15 साल की लड़की जो मिसेस डॉलिंग की बेटी थी. ठीक है. हर मदर वॉज नॉट एट होम. और वो बोलती कि मेरी मदर कहाँ है, कहीं गई हुई है छोटे मोटे काम के लिए. द नरेटर एक्सप्रेस्ड हर विश टू वेट फॉर हर. ठीक है. द नरेटर एक्सप्रेस्ड हर विश टू वेट फॉर हर. उसने बोला कि क्या मैं उनके लिए वेट कर सकती हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदर के लिए वेट कर सकती हूँ. द गर्ल अकम्पनीड हर टू द पैसेज. छोटा सा पैसेज होता है, वहाँ अकम्पनी करती है और एक बड़े हॉल में उनको बिठा देती है. ठीक है. उनको मतलब वो मिसेस डॉर्लिंग से अच्छे से, उनसे ज़्यादा अच्छे से उनको ट्रीट करती है. ठीक है. द नरेटर सॉ
an old fashioned iron candle stand hanging next to the mirror. हिनॉक जिसे बोलते हैं, उसमें बुक में हिनॉक भी लिखा हुआ है चिल्ड्रन. तो जैसे वो जाती हैं तो उन्होंने ओल्ड फैशन आयरन कैंडल होल्डर हैंगिंग नेक्स्ट टू द मिरर. और कैसा होता है मैं दिखाती हूँ तुम्हें. इट इज़ इन दिस शेप, इट इज़ इन डब्लू शेप. ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी होता है और इट इज़ लाइक दिस. एंड यहाँ पर कैंडल्स लगती हैं, यहाँ पर कैंडल्स लगती हैं चिल्ड्रन. दैट वॉज हेनॉक. ओल्ड कैंडल होल्डर होता है. दोबारा दिखाऊँ? सॉरी चिल्ड्रन, दोबारा दिखाती हूँ. इट्स एक्चुअली इन शेप ऑफ डब्ल्यू. ओके, एंड देन द कैंडल इज हियर. इट इज़ वेरी हैवी. ओके, इट इज़ इन दिस शेप. गॉट इट चिल्ड्रन? ठीक है. द गर्ल मेड हर सिट इन द लिविंग रूम एंड वेंट इनसाइड. तो उनको क्या करा, उसको आराम से बिठाया. कहाँ पर? लिविंग रूम में. और अपने आप कहाँ चली गई? अंदर चली गई. द नरेटर वॉज हॉरिफाइड टू फाइंड हर सेल्फ इन अ रूम शी न्यू एंड डिड नॉट नो. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. उसने बोला कि वो एक ऐसी जगह पर बैठी थी जहाँ पर उन्हें उस कमरे के बारे में पता भी था और ना भी पता था. पता क्यों था? क्योंकि वो जो सारी बिलोंगिंग्स थी वो उनकी मदर की थी चिल्ड्रन. तो वो क्या कर रही थी? वहाँ पर बैठ के उन चीज़ों को देख रही थी. ठीक है, तो उनको क्या था कि ये बिलोंगिंग्स उनकी है भी और नहीं भी. ठीक है चिल्ड्रन. नाउ द नरेटर वॉज हॉरिफाइड टू फाइंड अ सेल्फ इन अ रूम शी न्यू एंड डिड नॉट नो. क्योंकि डिड नॉट नो वो उस हिसाब से नहीं रखी थी जिस हिसाब से मिसेस एस रखती थी. The narrator, she found herself in the midst of familiar things which she longed to see again, but which troubled her in a strange atmosphere. उसको वो इच्छा थी कि वो उनको देखे, बट क्योंकि ये एटमोसफियर बहुत स्ट्रेंज था. ठीक है, तो फिर क्या हुआ? शी वॉज इन ट्रबल. शी हैड नो करेज टू लुक अराउंड हर. तो शी हैड नो करेज मतलब वो ज़्यादातर उन चीज़ों को देखना नहीं चाहती थी. क्यों? क्योंकि उनकी मदर मर चुकी थी. ठीक है, तो उनको बुरा लगता कि यार अब तो मेरी मदर मर चुकी हैं, फिर क्या होगा, मैं बार बार इनको देखूंगी तो उनको बहुत ज़्यादा याद आएगी. बट शी नो लॉन्गर हैड डिज़ायर टू पोजेस देम. उनको अब उनको नहीं चाहिए था कि यार ये मेरे घर आए. ठीक है. शी गॉट अप, वॉकड टू द डोर एंड लेफ्ट द रूम. अब वो क्या करती हैं? इस बीच में ये देखा गया कि मिसेस डॉर्लिंग्स का डॉटर का जो नेचर था बहुत अच्छा था. ठीक है, वो उनको क्या देती है? चाय देती है. ठीक है, बट वो ना इन चीज़ों को याद करते करते मिसेस डॉर्लिंग की जो व्हाट डू यू कॉल इट मदर मिसेस डॉर्लिंग थी. ठीक है, तो वो एक तो उनका नेचर देखकर, दूसरा वो देखती कि मेरी मदर तो मर गई, अगर ये चीज़ें मेरे पास होंगी तो क्या होगा. और प्लस वो जो जहाँ रहती थी वो क्योंकि वॉर के बाद वो छोटे से घर में रहती थी. ठीक है, जहाँ पर पूरे जो विंडो था वो ब्लैक पेन हो चुका था, उस पर ब्लैक करके उन्होंने ठीक करा था. तो शी डिडंट वांटेड टू टेक ऑल द पोजेशंस बैक. Okay children, now here the story actually ends and we will move to questions. Now these are short questions. I was in a room. I knew and I did not know. ये देखो मैंने बताया था ना, बहुत important है. What does the narrator say that she was in a room which she knew and yet she did not know them. Okay, now the second time the narrator went to Mrs. Darling's house, she was taken aside inside the house by Mrs. Darling's daughter. Now the second time narrator went to Mrs. Darling's house, ठीक है, and she was taken inside the house of Mrs. Darling's daughter. ठीक है, तो कौन लेके अंदर आता है? मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर लेके उनको अंदर लेके आती. When the door of the living room was opened to her, she went inside and she was immediately horrified whatever she saw inside the room. पहले तो जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा horrified होती है. उनको ये चीज़ें, उनको डर सताने लगता है. क्यों? क्योंकि उनकी मदर की याद आना शुरू हो जाता है उन्हें. The room was full of all their belongings. तो रूम किस चीज़ का था? रूम was full of her mother's belongings. ठीक है, which had been taken by Mrs. Darling at the beginning of the war. तो कौन लेके गया था? Mrs. Darlings लेके गई थी. क्या लेके गई थी? At the time of war she had taken all the
थिंग्स। तो उनको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी मदर मर चुकी थी, एक तो उसकी याद, प्लस उन्होंने देखा कि ये जो तरीका उन्होंने रखा हुआ था बहुत गलत था। ठीक है, जैसे उनकी मदर बहुत साफ सुथरा रखती थी। ठीक है, तो उनको वो अच्छा नहीं लग रहा था। शी फेल्ट शी न्यू द रूम बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ हर बिलोंगिंग as the room was not there but was different room, and the things were kept in a different manner. She felt she did not know the room. बताओ क्यों उनको ये लगा कि यार मैं इस कमरे को जानती नहीं हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस तरह से क्या होता है चिल्ड्रन, वो चीज़ें रखी रहती हैं वहाँ पर, तो वो बोलती यार ये मेरा घर नहीं हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द नरेटर कम बैक विदाउट क्लेमिंग हर बिलोंगिंग? आंसर, द नरेटर कम बैक विदाउट क्लेमिंग हर बिलोंगिंग। वो क्यों नहीं लेके आती सामान? सबसे पहली चीज़, ठीक है, वो क्यों नहीं लेके आती सामान? सबसे पहली चीज़ है, she says that the object which are linked in our memory immediately loses their value when the objects are seen after some time in a strange surrounding. वो तो सबसे पहले तो इंसान एक इंटरेस्ट लूज कर लेता है। इंटरेस्ट लूज कब करता है? जब वो अपनी सराउंडिंग में वो सारी चीज़ें देखता है बट बहुत अलग तरीके से रखे हुए। All her belongings, the silver cutlery, the clothes, etc., had lost their charm when they were seen in Mrs. Darling's house. क्योंकि उसकी मदर को बहुत अच्छे से रखती थी। ठीक है, she knew that if taken back they would again seem strange in her new small rented room. अब उनको पता चल गया था अगर मैं लेके भी जाती हूँ तो क्या करेंगे, बहुत strange होगा। Why did the narrator resolve to forget the address, number 46 Marconi Street? ठीक है, narrator turns up to collect the belongings. They aroused nostalgic feeling. True owner no more, and the stored things reminded the uncharitable. Now answer, the narrator turns up to collect the belongings. They aroused a nostalgic feeling, मतलब पुरानी उनको सारी चीज़ें याद आ रही थी। ठीक है, तो वो क्या बोलती हैं, यार अब तो मैं इसका ट्रू ओनर हूँ भी नहीं। Why should I take all this? The stored things reminded the uncharitable Mrs. Darling and her own tragic past. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बताती थी। मिसेस एस की डेथ दिखाती, हाउ मिसेस डॉर्लिंग केम होम एंड टुक इट। सो इट वॉज बेटर टू फॉरगेट दी पास्ट। ठीक है, बेटर टू फॉरगेट दी व्हाट डू यू कॉल इट, हर मदर। ठीक है, कि वो उनको बार बार ये चीज़ें उनको याद दिलाती। Short answer, justification of the title. Short story revolved around the number 46 Marconi Street. Starts with the address where the Jewish family suffers and ends with the narrator forgetting the address. ठीक है, तो यहाँ पर bread was getting lighter. Word phrases like you have to use these sentences. Okay, children. You have to use such sentences. Okay, now thank you. We'll do other NCERT questions in the next chapter.